Welcome students. Let's start sum number 5. ABC and DBC are two isosceles triangles. These are two isosceles triangles and show that angle ABD equals to angle ACD. We can do this sum in two ways. Either we can take AB equal to AC, therefore angle ABC equal to angle ACD. Similarly, angle DBC equal to DCB. Adding these two facts, we can get the answer. This is the first way. And the second way, join AD. मैं आपको दूसरे तरीके से ही करवा रहा हूँ. Join AD. अब आपको दो ट्रायंगल दिख रही है, ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD. In triangle ABD and triangle ACD, AB equals to AC given. First two letters AB, first two letters AC. BD equals to CD given. AD equal to AD common. AB equal to AC, BD equal to CB, AD equal to AD common. Therefore, two triangles are congruent. Under which condition? Under the condition SSS. Side, side and this side. Side, side and this side. Condition applicable is SSS. और अगर ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ट्रायंगल के नाम वाला एंगल ABD और उस ट्रायंगल के नाम वाला एंगल ACD CPCT से बराबर हो गया. अगर हम यूं देखें तो ABD मींस एंगल B, ACD मींस एंगल C. इस ट्रायंगल के बीच का एंगल है B और इसके बीच का एंगल है C. So if these two triangles are congruent, then angle ABD equal to angle ACD. Let's do the next sum. Triangle ABC is an isosceles triangle with AB equal to AC. So this AB is equal to AC, it is given. AB equal to AC given. This is our fact number 1. BA is produced to D. BA is produced to D. इसका मतलब B से A की तरफ आगे बढ़ेगी. अगर AB प्रोड्यूस होता तो B की तरफ आगे बढ़ते. BA is produced to D such that AD equal to AB. AD equal to AB, it is also given. AB equal to AC, AD equal to AB. AB is common. So from 1 and 2, we can say AD equal to AC. इन दोनों फैक्ट्स में AB कॉमन है, AB हट जाएगा कॉमन होके AD equal to AC. Now in triangle ABC, in triangle ABC, AB equals to AC. It was given. अगर AB और AC बराबर है तो इनके सामने वाले एंगल बराबर हो गए. AB के सामने एंगल 2 आ गया, AC के सामने एंगल 1. एंगल 2 equals to angle 1. Reason? Angles opposite to equal sides. Angles opposite to equal sides. Also, we have proved AD equal to AC. AD equals to AC. Now change the triangle. In triangle ADC, AD equal to AC. It is proved. AD equal to AC is proved. AD के सामने हम एंगल ले लेते हैं 3 और AC के सामने 4. इससे रिजल्ट निकला एंगल 3 equal to 4. Reason? Same angles opposite to equal sides. Angles opposite to equal sides. Now go to triangle BCD. In triangle BCD, angle B plus C plus D equals to 180 degree, and the reason is
एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। एंगल बी मीन एंगल 1, एंगल सी, ट्राइंगल बीसीडी का एंगल सी दो एंगल से मिलके बनता है, बीसीडी 2 + 3, एंगल सी मीन एंगल 2 + 3 एंड डी मीन एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री। हमारे को एंगल बीसीडी 90 डिग्री का चाहिए, बीसीडी मीन 2 + 3 90 का चाहिए, 2 और 3 हमें चाहिए, इनको हम छोड़ देते हैं, 1 और 4 की वैल्यू चेंज कर लेते हैं, 1 की वैल्यू 2 पुट हो सकती है, तो 1 की वैल्यू हो गई 2, 3 और 4 इक्वल है तो 4 की वैल्यू 3 हो सकती है। एंड व्हाट इज द रीजन ऑफ रिप्लेसमेंट? एंगल 1 इक्वल्स टू 2, एंगल 3 इक्वल्स टू 4, दिस इज द रीजन ऑफ द रिप्लेसमेंट। अब देखो एंगल 2 दो बार है, एंगल 3 दो बार है, तो हम 2 कॉमन ले सकते हैं, या एक स्टेप और लिखना हो तो डबल ऑफ एंगल 2 प्लस डबल ऑफ एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। 2 कॉमन हो गया, इधर से है एंगल 2 और इधर से 3, डबल ऑफ 2 कॉमन ले लिया, डबल ऑफ 2 को 2 से डिवाइड किया एंगल 2, डबल ऑफ 3 को 2 से डिवाइड किया एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल 2 + 3, ये 2 इधर मल्टीप्लाई है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो 90 डिग्री। 2 + 3 के इकट्ठे तो हम कह सकते हैं एंगल बीसीडी। 2 + 3 को अगर हम इकट्ठा कर देते हैं तो एंगल बीसीडी। तो जो हमें प्रूव करना था एंगल बीसीडी 90 का वो प्रूव हो गया। आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, देयरफॉर एंगल बीसीडी इज अ राइट एंगल, एंगल बीसीडी इज अ राइट एंगल। This is the way you will do sum number 6. Let's do sum number 7. Triangle ABC is a right triangle in which angle A equal to 90 degree. This is triangle ABC. Angle A equal to 90 degree and AB equals to AC. AB और AC आपको बराबर दे रखे हैं। Find angle B and angles in triangle ABC. AB equals to AC given. अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड इक्वल हो तो उनके सामने के एंगल इक्वल होते हैं। AB के सामने एंगल जा रहा है C और AC के सामने एंगल आ रहा है B। AB के सामने एंगल C, AC के सामने एंगल B। Therefore, angle C equal to angle B. Reason is angles opposite to equal sides. Angles opposite to equal sides. Now, angle A plus B plus C equals to 180 degree. And the reason is angle sum property of a triangle. Angle sum property of a triangle. एंगल ए की वैल्यू हमारे को 90 डिग्री दे रखी है। एंगल ABC इज ए राइट एंगल, एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री दे रखा है। B और C इक्वल हैं तो हम C की वैल्यू B लिख लेते हैं, C की वैल्यू B पुट कर लेते हैं क्योंकि एंगल C इक्वल टू एंगल B। तो 90 डिग्री प्लस डबल ऑफ B इक्वल्स टू 180 डिग्री। डबल ऑफ B 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो डबल ऑफ B की वैल्यू हो गई 90 डिग्री। एंगल B इक्वल्स टू 90/2 45 डिग्री। क्योंकि B और C इक्वल है इसलिए जो वैल्यू B की होगी वही C होगी। Therefore, एंगल B इक्वल्स टू एंगल C इक्वल्स टू 45 डिग्री। दिस इज द आंसर। Let's do last sum. Show that the angles of an equilateral triangle are 60 degree each. तो हम मान लेते हैं ट्रायंगल ABC आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखी है। Let ABC is an equilateral triangle. इक्विलेटरल ट्रायंगल की सभी साइड इक्वल होती है तो AB, BC और AC सब साइड इक्वल होगी।
पहले हम देखते हैं ए बी इक्वल्स टू एस, ए बी इक्वल्स टू बी सी ले लेते हैं पहले। इन एंगल्स का मैं नाम दे देता हूँ 1 2 3। आप बिना नाम के भी काम चला सकते हैं। ए बी और बी सी इक्वल है तो उनके सामने वाले एंगल इक्वल होंगे। अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड इक्वल हो तो उनके सामने वाले एंगल इक्वल होते हैं। तो ए बी के सामने एंगल आ गया 3 और बी सी के सामने एंगल आ गया 1, तो एंगल 3 इक्वल्स टू 1। रीजन इज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। इसका आप फैक्ट नंबर 1 मानो। ऑल्सो जिस तरह से ए बी और बी सी इक्वल है उसी तरह से ए बी और ए सी भी इक्वल है। ए बी इक्वल्स टू ए सी। अगर ए बी और ए सी बराबर है, ए बी के सामने एंगल आया 3 और ए सी के सामने एंगल 2, देयरफॉर एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 2। रीजन भाई एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। एंगल 3 और 1 इक्वल है, 3 और 2 इक्वल है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 या तो आप एंगल 3 कॉमन है उसको छोड़ सकते हो, तो एंगल 1 इक्वल टू 2। आप चाहो तो इनको साथ ले सकते हो। इस केस में इनको साथ लेना पड़ेगा, तो एंगल 1 2 3 सब इक्वल हो गए। अब एंगल 1 2 3 ट्रायंगल के एंगल है। एंगल 1 2 3 आर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, सो इनका सम 180 डिग्री हो जाएगा। रीजन इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। क्योंकि ये तीनों एंगल बराबर हैं इसलिए हम तीनों की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं। रीजन एंगल 1 इक्वल टू 2 इक्वल टू 3, सॉरी 3 की वैल्यू 1 is occurring 3 times, the triple of 1 equal to 180 degree. That means angle 1 equals to 180 by 3, it is 60 degree. एंगल 160 डिग्री का आ गया। एंगल 1 2 3 बराबर थे, therefore एंगल 1 इक्वल टू 2 इक्वल टू 3 इक्वल टू 60 डिग्री। इसको हम ए बी सी भी लिख सकते हैं। तो एंगल ए बी सी हर एक एंगल 60 डिग्री का हो गया। इस तरह से प्रूव हो गया कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल 60 डिग्री का होता है।